I'm going to discuss your entire preparation in 4 phases. Over the next 11 months, first 5 months for building the foundation, 2 months for covering only the main centric areas. For students who are going to write in 2027 examination, पहली बात हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी एंड एथिक्स, इन 5 चीजों को प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों के लिए फुली रेडी रखना है. डिवाइड योर प्रिपरेशन in 2 halves. Give 50% of the time to optional and 50% of the time to GS. Means के लिए अलग अगर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नोट्स नहीं है तो आपकी प्रिपरेशन isn't complete. You won't be able to revise things in the end. You won't be able to do well in the examination. एक बच्ची है तनीषा जो लास्ट ईयर सेलेक्ट हुई है, उसने अपनी मेंस की मोस्टली प्रिपरेशन जून जुलाई में करी थी. हमें मेंस को बहुत ही स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करना होगा. एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे प्रिपेयर करना होगा, नहीं तो विल एंड अप रीडिंग अ लॉट ऑफ. जो भी बच्चा लेवल अप मेंटरशिप प्रोग्राम जो 18 जून से शुरू हो रहा है, अगर आप वो ज्वाइन कर रहे हो तो नेक्स्ट 400 डेज आपको क्या करना है हम बताएंगे, आप बस करो. यूल हैव टारगेट्स एवरी डे, यूल हैव टेस्ट एवरी संडे जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों हो रहे होंगे. हम जब प्रीलिम्स के पास जाएंगे तो आपके हर रोज 50 क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे. हम जब मेंस के पास जाएंगे आपके हर रोज 4-5 आंसर्स लिखने के टेस्ट होंगे. विदाउट अ रिविजन स्ट्रैटेजी यू विल नॉट गेट सिलेक्टेड. आप नई नई चीजें पढ़ते जाओगे, पुरानी चीजें रिवाइज नहीं करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू गेट थ्रू. Good evening, everyone. My name is Santosh Kumar, and today I'm here to discuss what are the core things that we should focus upon in order to ensure that we are prepared for the 2027 preliminary as well as mains examination by next year. That is, before preliminary examination we are fully ready for prelims, and before mains examination we are fully ready for mains. क्या हमें करना चाहिए in order to do that? Okay, इसमें शायद सेटिंग भी आपको चेंज करना पड़ेगा so that students can join automatically. Okay, okay, done. तो देखो, I'm going to discuss your preparation, your entire preparation, uh, in 4 phases. Over the next 11 months, when we talk about 11 months, I'll first have first 5 months for building the foundation, 2 months for covering only the main centric areas. Then uh, January 2027 to uh, May 2027 dedicatedly going for prelims, and then आखिरी में prelims के बाद 2 months dedicatedly going for mains examination. This is the these are the 4 phases I want to discuss. In each phase, we'll talk in detail about what should be done, how it should be done. तो सबसे पहले ना, let us start with the first phase. कि यार सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है, 2027 के लिए प्रिपेयर्ड रहना है. Some of you may be beginners, may be just doing foundation. Some of you may be at the advanced level of preparation, but still are preparing for 2027. हम दोनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को ना दिसंबर तक मोर और लेस मेंस के लिए रेडी रहना होता है. एंड देयर व्हाट आवर सजेशन इज कि इन द फर्स्ट 5 months, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, divide your preparation in 2 halves. 2 halves कैसे? You give 50% of the time to optional and 50% of the time to GS. You may say, sir, optional is of only 500 marks, whereas GS along with essay is 1250 marks. Why so much of time to optional? Because after January, you won't be able to give a lot of time to it. जनवरी के बाद आपका जीएस चलता रहता है, क्या नहीं चलता है? ऑप्शनल नहीं चलता है. एंड व्हेन वी सी टॉपर्स, व्हेन वी सी स्टूडेंट्स गेटिंग सिलेक्टेड, most of the time a student gets good rank is because she or he has done very well in the optional subject. And that is why what we generally recommend right from the beginning, आप ऑप्शनल को ज्यादा टाइम दो ऑप्शनल इज वर्थ 500 मार्क्स एंड जीएस प्लस एसए इज वर्थ 1250 मार्क्स. आप ऑप्शनल को उतना ही टाइम दो जितना जीएस को दे रहे हो. पहला पॉइंट तो ये है. अब कितना, जैसे लेट्स से योर यू गेट अप एट 6 in the morning, तो सॉरी, आई एम रियली सॉरी. हाँ, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस फेज कि लेट्स से यू गेट अप एट 6 in the morning, तो यार 6 बजे से 2 बजे तक ऑप्शनल करो, 2 बजे से
maybe let's say if you get up at 6 in the morning, you may be sleeping at 11. इस पीरियड में जीएस करो, समथिंग लाइक दिस. नाउ आई नो यू विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स इन बिटवीन, बट प्रिपरेशन ऐसे डिवाइड करनी है कि हाफ ऑफ द टाइम शुड स्टार्ट गोइंग फॉर ऑप्शनल राइट फ्रॉम द बिगनिंग. ओके, नाउ लेट्स कम टू क्या करना चाहिए. देखो, सबसे पहले फॉर स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू राइट in 2027 examination पहली बार, या even if students who are already kind of prepared and would be writing 2027 as their second attempt or third attempt, in every case first thing that all of us should be able to do is history, geography, polity, governance, economy and ethics. इन 5 चीजों को प्रीलिम्स और मेंस के लिए, दोनों के लिए फुली रेडी रखना है. अब I'll explain you the meaning of being fully ready, but in the first 5 months जो आप हाफ टाइम जीएस को दे रहे हो, उसमें प्लीज इंश्योर दैट योर हिस्ट्री, your geography, your polity and governance, your economy. Economy includes agriculture, infrastructure, all those stuff, and ethics. ये 5 चीजें पूरी कवर है. देखो, हिस्ट्री ज्योग्राफी is 2/3 of paper 1, GS1. Polity and governance is again 2/3 of paper 2. Economy is half of paper 3, and ethics is 100% of paper 4. Yeah, complete paper 4. So this is a huge portion for mains as well as for preliminary examination, and that is why we cannot be ignoring it. हमें इसको पहला टारगेट ये रखना है कि यार ये वाला मेरा पोर्शन नेक्स्ट 5 मंथ्स में, हाफ ऑफ द डे में, बाकी हाफ ऑफ द डे में मेरा ऑप्शनल चल रहा है, उस पे बात करते हैं क्या करना है, बट इन हाफ ऑफ द डे दिस शुड बी कंप्लीटली डन. इसको किसी भी सिचुएशन में किसी भी तरीके से आपको कंप्लीटली डन करना है. कंप्लीटली डन होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यार फॉर एवरीथिंग इन द सिलेबस, जैसे फॉर एवरीथिंग इन द प्रीलिम सिलेबस एंड मेन सिलेबस, आई हैव स्टडीड दैट, आई हैव नोट्स फॉर इट. मैंने कोई किताब उठा के पढ़ ली, बट मेरे पास अगर नोट्स नहीं है, स्पेशली मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए नोट्स नहीं भी होते तो चल जाता है, मेंस के लिए अलग अगर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नोट्स नहीं है, तो आपकी प्रिपरेशन इजंट कंप्लीट. यू वोंट बी एबल टू रिवाइज थिंग्स इन द एंड, यू वोंट बी एबल टू डू वेल इन द एग्जामिनेशन. एंड आई हैव डन पीवाईक्यूज पहले 5 महीने में. इन half of the time, half of the time will give for optional. In half of the time, please ensure history, geography, polity, economy and ethics. In सबके even if you are a beginner in the sense you are going to give 2027, your 2027 will be your first attempt, or if you are a repeater, in both the cases please make sure prelims के और mains के सारे PYQs you are in a position to answer by the next 5 months for these subjects. You may not be able to do it for every subject, but for these subjects you should be able to do that. So prepare topic wise notes as you study, attempt prelims and mains PYQs alongside, and keep updating it with current affairs. Now current affairs में ना एक mistake that students make is this: they start making notes for current affairs from day 1. वो नहीं करना है. जो देखो, हमेशा ना किसी भी सब्जेक्ट का जब बेसिक नोट्स प्रिपेयर्ड हो गया ना, जैसे इकोनॉमी के बेसिक नोट्स आपके पास प्रिपेयर्ड है, उसके बाद आप करंट अफेयर्स ऐड करोगे. द रीजन इज, जब तक आपके पास बेसिक्स नहीं है, तो ना करंट अफेयर्स मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल नॉट अंडरस्टैंड एंड यू विल कीप ऑन एडिंग इरेलेवेंट थिंग्स इन योर नोट्स. तो ऑलवेज वेट फॉर द बेसिक्स गेटिंग कंप्लीटेड बिफोर यू स्टार्ट अपडेटिंग दोज थिंग्स विथ करंट अफेयर्स. तो first do this, first do what? First complete these 5 subjects, both for preliminary and mains examination. Have notes for it. PYQs prelims के और mains के पूरे होने चाहिए, and keep updating current affairs once basics are done. पहले 5 मंथ में ये करना है. और if you come from non maths background and CSAT can be a trouble for you, please make sure that आप अभी से थोड़ा सा टाइम, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी, depending on at what level of preparation you are giving to CSAT.
ये अपना ना बेसिक्स का प्रिपरेशन होगा, फाउंडेशनल प्रिपरेशन होगा। यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए यू आर 50% रेडी, मेंस के लिए भी यू आर 50% रेडी फॉर जीएस। अब आते हैं इसी फेज में, व्हाट डू वी हैव टू डू फॉर ऑप्शनल। देखो, इवन इफ यू आर अ बिगिनर इन ऑप्शनल एंड यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, लेट्स से, इवन उन बच्चों के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, अगले 5 महीने में एटलीस्ट अपनी क्लासेस खत्म कर लो, एक बार एंड टू एंड सिलेबस कंप्लीट कर लो। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग, कंप्लीट योर ऑप्शनल क्लासेस, एट द वेरी लीस्ट फिनिश द फुल सिलेबस वंस। अगले 5 मंथ्स में आपका ऑप्शनल के लिए ये टारगेट होना चाहिए। इवन इफ यू आर अ रिपीटर, एटलीस्ट ये तो होना चाहिए कि यार मैंने ऑप्शनल पूरा पढ़ लिया। और पीवाईक्यूज, आपका ऑप्शनल का सिलेबस तब पूरा होगा व्हेन along with completing every bullet point of the syllabus you are writing PYQs. आजकल AI tools can help you segregate all the PYQs. AI tools can help you evaluate your answers also, पर आपको लिखना पड़ेगा। लिखो, आपके पास कोई गाइड है उससे इवैल्यूएट कराओ, नहीं तो AI टूल है, AI टूल से इवैल्यूएट कराओ। दैट वुड बी गुड, दैट वुड बी गुड इनफ। तो पहले 5 महीने में मुझे क्या करना है, पहले 5 महीने में मुझे ये दो चीजें कंप्लीट करनी है। पूरा मेरे में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एथिक्स मेंस के लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी प्रीलिम्स के लिए, और मुझे अपने ऑप्शनल का सिलेबस, मुझे ना अभी बहुत सारे टेस्ट सीरीज इन सब के पीछे नहीं भागना है, मैं सारे पीवाईक्यूज कंप्लीट करूंगा, करंट अपडेट्स करूंगा। दीज आर द फर्स्ट 5 मंथ्स। नाउ some people have started asking questions. Give me some time. I'll uh, uh, towards the end of this session, I'll ask you to put your questions then, and उस time I'll be able to answer all the questions. But uh, अभी जो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है मैं उसको आंसर कर दे, व्हाट शुड आई स्टार्ट फर्स्ट, फाउंडेशन और ऑप्शनल सब्जेक्ट? बेटा बोथ द थिंग्स, ये एक ही दिन में 2 पार्ट्स हैं। देखो, दिस इज फेज 1 ऑफ द फोर फेजेस इन विच विल स्टडी। जून से अक्टूबर में हमें क्या करना है, आधा दिन जीएस को देना है और आधा दिन ऑप्शनल को देना है। ओके अभी मैं बात करता हूँ रिवीजन में। आई एम टेकिंग अ फुल सेशन ऑन रिवीजन। आज मैं रिवीजन को भी डिटेल में समझूंगा। एक बार मुझे इस तरह आपके सारे डाउट्स ना विल टेक केयर ऑफ। रिदम, यस यस बेटा, इट इज पॉसिबल इन 11 मंथ्स। तब बताएंगे आपके जो भी डाउट्स होंगे, आई टेक इट। ओके, तो सबसे पहले हमें ये करना है, देन विल कम टू सेकेंड फेज। सेकेंड फेज कहां होगा? सेकेंड फेज होगा हमारा नवंबर दिसंबर में, ओनली फॉर 2 मंथ्स। एंड इन दीज 2 मंथ्स what we should be targeting is, ये जो छोटे छोटे एरियाज है ना, which are relevant mostly for मेंस एग्जामिनेशन, जैसे सोसाइटी सोशल जस्टिस, आईआर, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, या साइंस टेक और एनवायरनमेंट का भी कौन सा वाला पार्ट, सिर्फ मेंस वाला पार्ट। प्रीलिम्स के लिए साइंस और एनवायरनमेंट बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, सिर्फ मेंस वाला। in these 2 months, just focus on mains, November December. Why am I saying so? Because जनवरी से तो वैसे भी प्रीलिम्स के लिए फोकस करना है ना, तो you'll be able to give a lot of time to prelims then. So in the second phase, November December, try to finish all these things for mains examination, और बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। आईआर आप 10 दिन में कोई भी एक क्लास लेके अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। ऐसे ही सोसाइटी सोशल जस्टिस 10 दिन में कर सकते हो, डिजास्टर मैनेजमेंट 3-4 दिन में हो सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी 10 दिन में हो सकता है। इन 2 मंथ्स यू कैन वेरी इजिली कवर दीज थिंग्स, अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है, प्रॉपर स्टडी मटेरियल है, प्रॉपर क्लासेस है, वो है, तो यूल बी एबल टू डू इट। I'll talk about sources also. I'll talk about which are the most important sources that you can consider. But November December में try to finish this. मैं ना, before we jump on to full-fledged prelims preparation in January, I want all of you to feel like यार ये जो पोर्शन है, कौन सा पोर्शन है, मेंस का, मैंने ना सारा कंप्लीट कर लिया है, मेरे पास सबके नोट्स है, मैंने सबके पीवाईक्यूज देखे हुए हैं। इन सारी चीजों को हमें कंप्लीट करना है बिफोर वी गो टू प्रीलिम्स प्रिपरेशन। ऐसे ही इन द फर्स्ट फेज यू हैड कंप्लीटेड द सिलेबस ऑफ ऑप्शनल, यू हैड आल्सो डन सम पीवाईक्यूज, यहां पे उसे रिवाइज करो, और हो सके तो कुछ टेस्ट लिखना चालू कर दो। अभी हमने टेस्ट नहीं लिखे थे, हमने पीवाईक्यूज किए थे। In November, December, half of the day which you are giving for optional, what do you focus upon? You focus upon completing the revision, because इसके बाद ना ऑप्शनल पे ब्रेक लगेगा। जनवरी से we're going to focus on preliminary examination. ऑप्शनल
ब्रेक लगाने से पहले हम एक बार रिवाइज करके कुछ टेस्ट लिख के रेडी रहेंगे, सो दैट इवन इफ वी डोंट स्टडी ऑप्शनल फॉर 3-4 months, in May after preliminary examination when we open optional, it should be like, हाँ हो गया, I have notes for everything, I have written PYQs, I've done revision, I have also written some tests, I'm prepared for it. ऐसे ही ये वाला सेक्शन हमें ध्यान से करना है, अच्छे से कवर करना है. Okay, now this was second phase. By second phase we are mostly done for mains. Prelims में there may be some shortcoming. Third phase, January to May 2027. यहाँ पे if there is anything pending for preliminary examination, while studying for in the first phase, you maybe have found okay, I could not do some chapter of geography, I couldn't do some science and tech, some environment, which were mostly focused on prelims. In the first 1 or 2 months, fill all the gap, don't leave anything pending. Second, revise everything. Third, start writing full syllabus tests. किसके? Objective for preliminary examination. So in first 1 or 2 months, you will fill in all the gaps which may be there. Uske baad, you will revise everything for preliminary examination, and while revising, you will also be doing PYQs from February mid या March 1st से start writing full syllabus test, because by this time you have completed your syllabus. यहीं पे what you will also do is somewhere from what do I say, मिड मार्च और 1 अप्रैल, जितने भी इंस्टीट्यूशंस के ओपन मॉक टेस्ट होते हैं ना, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अलग अलग होते हैं. हमारे यहाँ लेवल अप आईएएस कंडक्ट समीक्षा, ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के ओपन मॉक टेस्ट होते हैं, वो दे दो. Get an understanding of where you are, what the loopholes are, and keep working on improving them. Okay, so this is my prelims phase, where between January and May मेरा पूरा dedication preliminary examination पे है. Some of you may be saying कि नहीं, I'll not give this much time for prelims, but prelims ना बहुत ही अजीब सा होता जा रहा है, and मेरे ख्याल से ज्यादा फोकस, ज्यादा डेडिकेशन prelims पे होने की जरूरत है. Okay, now Tripti, I'll take this question. Tripti has asked a question कि sir, what about current affairs? बेटा current affairs को ना एक separate subject नहीं मानते हैं. आप जब पॉलिटी पढ़ रहे हो, आपने पॉलिटी के बेसिक्स पढ़े, आप रोज न्यूज़पेपर देखोगी, उससे पॉलिटी का करंट अफेयर्स आएगा. जैसे आप साइंस पढ़ोगी, तो आप जब साइंस का न्यूज़पेपर देखोगी, तो उसमें आप साइंस के बेसिक्स नोट्स के साथ आप करंट अफेयर्स ऐड करोगे. अभी करते हैं, उसमें भी और बात करते हैं. तो करंट, डू नॉट सी करंट अफेयर्स एज अ सेपरेट सब्जेक्ट. करंट अफेयर्स हैज टू बी इंटीग्रेटेड विद द बेसिक्स प्रिपरेशन. ओके, थर्ड फेज. फाइनली, इन द एंड, आई हैव माय लास्ट फेज, द मेंस एग्जामिनेशन फेज. जून जुलाई मिलता है, अगस्त में तो मेंस आ जाता है, 20 तारीख से मेंस आ जाता है, 15-20 दिन रिवीजन पे जाएगा. तो यू some you need to complete everything in 2 months only. और 2 months में ना कुछ भी complete नहीं होगा. 2 months में you'll only be able to do revision and do some current affairs updates. ये reality है. इसीलिए मेंस की प्रिपरेशन दिसंबर तक खत्म हो जानी चाहिए. Otherwise, June, July, in 2 months completing everything becomes very, very difficult. Have people done it? Yes, they have done it. I have some students, जैसे एक बच्ची है तनीषा जो लास्ट ईयर सेलेक्ट हुई है, उसने अपनी मेंस की मोस्टली प्रिपरेशन जून जुलाई में करी थी, हो गई, बट शी हैज परफॉर्म बिलो हर पोटेंशियल. शी कुड हैव गॉट अ वेरी वेरी गुड रैंक बेस्ड ऑन हर कैपेबिलिटीज, बेस्ड ऑन हर राइटिंग स्किल्स, बट वो इतनी अच्छी रैंक नहीं आई. क्यों नहीं आई? क्योंकि बहुत सारा प्रिपरेशन हम जून जुलाई में कर रहे हैं. यहाँ पे रिविजन होना चाहिए. योर प्रिपरेशन शुड बी कंप्लीटेड, मेंस प्रिपरेशन शुड बी कंप्लीटेड इन द फर्स्ट 2 phases ओनली, एंड देन in this phase what do? You revise, you do any value addition. Revise करते टाइम आपको लगता है कि there is some shortcoming, please work on that, do value addition, do current affairs updates, and write answers. You have to write like 5 answers every day. बात करता हूं मैं इस पे भी. ऐसे ही ऑप्शनल में revise, while revising you feel कि something is lacking, do value addition and write a few answers every day. यहाँ पे please make sure that you're updating things with current affairs, but most importantly, write 5 answers every single day. Even हम अभी बच्चे, हमारे जितने भी बच्चे मेंस प्री क्लियर कर रहे हैं, उनको हम क्या करवा रहे हैं? उनको हम रोज 4-5 आंसर्स लिखवा रहे हैं. पर्पस क्या है?
this you already have the knowledge. If you're clearing preliminary examination, you have knowledge. You do not have to worry about कि यार will I be able to write anything. What is important is how will you write it, and that's why write 5 answers every day, GS के लिए भी, optional के लिए भी. Then be part of some test series where every Sunday you'll write 2 tests. 9 to 12 optional, 2 to 5 GS, या 9 to 12 GS, 2 to 5 optional. Every Sunday you are getting into the habit of writing for 6 hours, because in the mains examination you'll be writing for 6 hours daily. मेंस एग्जामिनेशन में GS1 GS2 होगा एक दिन, GS3 GS4 होगा एक दिन, ऑप्शनल वाले 2 पेपर्स होंगे, हिंदी इंग्लिश या इलेक्टिव जो सब्जेक्ट्स होते हैं उस पे जो पेपर होंगे, जैसे मेरे केस में इट यूज्ड टू बी हिंदी एंड इंग्लिश. तो you'll have to write 6 hours every day. You have to start practicing that. And जून जुलाई में विल डू दिस. अगस्त में ना भी मेंस के सिमुलेशन होते हैं. व्हाट इज मेंस सिमुलेशन? मेंस सिमुलेशन इज व्हेन coaching institutes provide you the same environment कि GS में write GS1 from 9 to 12, GS2 from 2 to 5, GS3 from 9 to 12, and GS4 from 2 to 5 the very next day. So in 2 days writing 4 papers, this kind of simulation is provided, and you should go and do those things in August along with revision. इससे आपका प्रिपरेशन पूरा होगा. देखो अभी मैंने आपको ब्रॉड आइडिया दे दिया कि आपको अगर टारगेट्स बनाने हैं, how should you be making targets. I'll summarize the whole thing once again. First, I'm saying from June to October, the 5 months, focus on the 5 fundamental subjects: history, geography, polity, economy and ethics. पांचों को प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ना है, मेंस के लिए भी पढ़ना है. हाउ विल यू इवैल्यूएट वेदर you are studying it right or not? Look at the PYQs. Are you able to solve prelims PYQs? Are you able to solve mains PYQs? ये चीज करनी है सबसे पहले. ठीक है. उसके बाद नवंबर दिसंबर फोकस ऑन मेंस ओनली एरियाज, जैसे सोसाइटी, सोशल जस्टिस, इंटरनल सिक्योरिटी, IR एक्सेट्रा. इसी फेज में, फर्स्ट फेज में, प्लीज मेक श्योर दैट ऑप्शनल एक बार सिलेबस आप कंप्लीट कर रहे हो, सेकंड फेज में रिवाइज करके टेस्ट दे पा रहे हो. ये करना है. ओके. फिर हमने थर्ड फेज में प्रीलिम्स पे फोकस किया, और फोर्थ फेज में, लास्ट फेज में, व्हाट आर वी डूइंग? वी आर रिवाइजिंग, डूइंग सम वैल्यू एडिशन और करंट अपडेट इफ नीडेड, एंड राइटिंग अ लॉट. while we wrote in the first 7 months also, जून टू दिसंबर में हमने बहुत लिखा है, बट यहाँ पे तो रोज 10 आंसर लिखोगे, 4-5 आंसर जीएस के, 4-5 आंसर ऑप्शनल के. हर संडे को यू विल राइट फॉर 6 hours, यू विल अटेम्प्ट 2 papers. दिस इज क्रूशियल. विदाउट राइटिंग, clearing this examination, mains examination, will not be possible. I always say this, कि even if Shashi Tharoor was writing this examination without preparing for this examination, he would not, no matter how well she writes or he writes, he would not clear this examination. He has to understand कि okay, 150 words में लिखना है, 250 words में लिखना है. I'll have to finish this answer in 7.5 minutes only. I'll have to finish this answer in 10.5 minutes only. मेरे को आंसर को ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ऐसे स्ट्रक्चर करना है, so that it is, all those things have to be taken care of in order to clear this examination. तो don't be very arrogant कि okay, I'm already writing for newspapers, so my writing skills are very good, I'll do very well. No, practice, 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 practice. Get it reviewed, get it evaluated. That will be crucial. So these were the 4 phases. अब ना बात करते हैं कि यार मैंने ये तो बता दिया, ये कर लो, कहां से करना है, क्या करना है, what are the sources. Let's talk about that. Okay. A lot of questions have been asked. Guys, please do not put in all the questions right now. मेरे को ना थोड़ा सा समय दे दो. Let me complete this and then I'll take all the questions. अभी ना फिर आपके questions सारे पीछे चले जाएंगे, है ना? प्लीज. शुड आई नीड टू कम टू दिल्ली आफ्टर क्लियरिंग प्रीलिम्स? बेटा आ जाने का फायदा क्या होता है? देखो, देयर आर एडवांटेजेस, देयर आर डिसएडवांटेजेस. ऐसे हाँ, मैं करता हूँ, सबकी बात करता हूँ, बट let me first do this. Let me first talk about the sources, because some of you had asked about sources कि क्या sources होने चाहिए प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए. देखो, प्रीलिम्स में we have to do history, culture, geography, polity, environment,
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल बॉडीज एंड इंटरनेशनल मैपिंग। ये चीजें होती हैं, ये चीजें होती हैं जो कहाँ जाएंगी, ये चीजें होती हैं जो हमें प्रीलिम्स के लिए पढ़नी है। अब व्हाट आर द बेस्ट सोर्सेस फॉर ईच ऑफ द थिंग्स? देखो बेटा, सोर्सेस में ना एक तो तरीका होता है, यू गो थ्रू स्टैंडर्ड सोर्सेस। जैसे हिस्ट्री के लिए यू डू एनसीईआरटी एंड डू पीवाईक्यूज। एनसीईआरटी से सारे पीवाईक्यूज नहीं हो पाएंगे, तो जो पीवाईक्यूज नहीं हो पाते हैं उसके लिए अपने नोट्स में चीजों को ऐड करो। या फिर जैसे मॉडर्न इंडिया के लिए कुछ बच्चे विपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन ना, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ एफर्ट्स निखिल सर हैज पुट, मैं जनरली बच्चों को ये रिकमेंड करता हूं कि अगर आपको प्रीलिम्स के लिए हिस्ट्री पढ़नी है, एंशिएंट मिडिवल कल्चर पढ़ना है, आप निखिल सर से पढ़िए। व्हाट ही हैज डन इज ही हैज गॉन थ्रू ऑल द सोर्सेस। एनसीईआरटीज भी करा है उन्होंने, उन्होंने स्टैंडर्ड बुक्स भी करी हैं, एंड ही हैज कंपाइल्ड देम इन अ वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर इन हिज नोट्स, एंड ही कवर्स दैट इन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वे। आप कोई भी ना, like Nikhil sir has a lot of videos on YouTube, you go and watch those videos, there you will understand कि the coverage is very very exhaustive. तो rather than एनसीईआरटीज रीड करो, यस कर लो, बट इवेंचुअली योर सोर्स ऑफ प्रिपरेशन शुड बी निखिल सर्स नोट्स। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ना देयर इज नो वन हु कैन कवर हिस्ट्री इन अ मोर इंटरेस्टिंग मैनर, इन अ मोर सिस्टमैटिक मैनर देन व्हाट ही डज। हम जो सुपर, इस बार हिस्ट्री में 21 क्वेश्चंस आए थे, वो 21 क्वेश्चंस ना, दैट वाज लाइक 1/5 ऑफ द पेपर। सो फार पीपल हैव केप्ट ऑन इग्नोरिंग एंशिएंट मिडिवल कल्चर, वो इग्नोर नहीं करना है। दूसरा, व्हेन इट कम्स टू मॉडर्न इंडिया, हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया भी आता है। मॉडर्न इंडिया में यू हैव स्पेक्ट्रम, एक स्टैंडर्ड सोर्स की तरह यूज करते हैं बच्चे, बट आई फाइंड दैट बुक टू बी थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक बिकॉज कवरिंग इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो कीप स्पेक्ट्रम विद यू, बट पहले एक बार एनसीईआरटी रीड करो अच्छे से, एंड देन स्पेक्ट्रम को ना सिलेक्टिवली पढ़ो। सिलेक्टिवली कैसे? एनसीईआरटी रीड करने के बाद स्टार्ट सॉल्विंग पीवाईक्यूज, एंड व्हेन यू आर नॉट एबल टू सॉल्व सम पीवाईक्यूज, स्पेक्ट्रम को के उस एरिया को पढ़ो जहां से वो पीवाईक्यू हो रहा है। जैसे मान लो सोशल रिलीजियस मूवमेंट से आपको कोई पीवाईक्यू है, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, देन गो टू स्पेक्ट्रम एंड रीड दैट एरिया। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? तो डू नॉट ट्राई टू रीड एवरीथिंग इन स्पेक्ट्रम, जस्ट द इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, अब कमिंग बैक टू दिस कि कोई बच्चा पूछ रहा है कि विशाल सर के नोट्स फॉर मॉडर्न इंडिया इंस्टेड ऑफ स्पेक्ट्रम। यस, देखो प्लीज समझो, स्पेक्ट्रम इज नॉट अ टेक्स्ट बुक। Spectrum में ना, spectrum is a compilation from many sources and thus it is humongous and ROI is very less. Whereas Vishal sir के notes are specifically for class, and when they are specifically for class, they are very very relevant for the examination. They are to the point, they are very exam centric. But मैं बोलूंगा, अगर आप विशाल सर के नोट्स पे डिपेंडेंट होना चाहते हो, साथ में एनसीईआरटी रीड कर लेना टू अंडरस्टैंड द स्टोरीज। विशाल सर के नोट्स नोट्स हैं, एग्जाम के लिए बने हैं, पर हमें ना, हमें अपने मॉडर्न इंडिया की स्टोरी भी समझनी होती है। तो जो एनसीईआरटी है या बिपिन चंद्रा वाली बुक है, उसे कवर करो। ऐसे ही इफ इट कम्स टू ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में एनसीईआरटी रीड करनी चाहिए। 9, 10th, 11th, 12th की एनसीईआरटीज आपको करनी चाहिए, पीवाईक्यूज देखने चाहिए। जो पीवाईक्यू नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए थोड़े और एडिशंस कर लो। इफ यू आर स्टूडेंट एट लेवल अप आईएएस, डोंट डू ऑल दिस। हम जो आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें हमने ऑलरेडी एनसीईआरटीज को इनकलकेट करके दिया हुआ है। देन पॉलिटी, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत या डीडी बासु में से कोई एक चीज करनी है, प्लस करंट अपडेट्स। इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है ना। पॉलिटी में आपको लक्ष्मीकांत या डीडी बसु में से कोई एक बुक लेनी पड़ेगी, उसे अच्छे से करना है। एक दो बार तो उसे ऐसे ही रीड कर लो कि पूरा पढ़ना है, बट थर्ड टाइम ना पीवाईक्यूज को देख देख के रीड करो कि किस किस एरिया से सवाल आ रहा है। इससे सवाल आ रहा है, मुझे इस पे ज्यादा एम्फेसाइज करना है। एक दो बार तो, जैसे इफ यू आर रीडिंग डीडी बासु, इफ यू आर रीडिंग लक्ष्मीकांत, तो जस्ट रीड द एंटायर बुक ट्वाइस, ऐसे ही एंड टू एंड, विदाउट वरिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड एज मेनी थिंग्स एज पॉसिबल। दो बार जब ऐसी रीडिंग हो जाएगी ना, देन थर्ड टाइम यू कम एंड फोकस ऑन द एग्जामिनेशन, कि यार अब पीवाईक्यूज देखते हैं, जहां से पीवाईक्यू ज्यादा है उसे ज्यादा अच्छे से समझेंगे, उस पर ज्यादा समय बिताएंगे।
अब एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट की भी ना कोई बहुत अच्छा सोर्स होता नहीं है। सोर्सेस ना बहुत आउटडेटेड हो जाते हैं। जैसे बुक्स आती हैं जो एनवायरनमेंट की, वो बहुत आउटडेटेड रहते हैं क्योंकि वो ना पुराना कंटेंट। एनवायरनमेंट इज वेरी डायनेमिक सब्जेक्ट। तो जनरली मैं जो हमारे बच्चे होते हैं, लेवल अप आईएएस में बच्चे होते हैं, मैं उनको कोई बुक रिकमेंड नहीं करता। मैं बोलता हूँ हम नोट्स आपको देंगे, वो दैट विल बी अपडेटेड विद लेटेस्ट करंट अफेयर्स, दैट विल नॉट हैव इरेलेवेंट कंटेंट विद जनरली बुक्स कंटेन। तो एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आई वुड रिकमेंड यू, आप लेवल अप आईएएस के ही नोट्स पढ़िए अच्छे से। हम उसमें सारी चीजें, सारे स्टैंडर्ड बुक, सारे स्टैंडर्ड सोर्सेस का अच्छा कंटेंट भी इंक्लूड करेंगे, प्लस इट विल बी अपडेटेड विद करंट अफेयर्स ऑल्सो। तो एनवायरमेंट एंड साइंस टेक को प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए यू कैन जस्ट रिलाई ऑन लेवल अप। और मैं ये नहीं बोल रहा कोई कोर्स लो, जैसे साइंस टेक मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला हुआ है सारा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए साइंस टेक इज देयर ऑन यूट्यूब। मैंने इस साल जितना भी पढ़ाया था सब यूट्यूब पे डाला हुआ है। आप उसे पढ़ो और उसमें बस करंट अफेयर्स अपडेट कर लो। यू विल सी दैट योर प्रिपरेशन वुड बी गुड इनफ। ऐसे ही इकोनॉमी इकोनॉमी के लिए ना एनसीईआरटीज मत करना। एनसीईआरटीज आर वेरी वेरी पुअर बुक फॉर इकोनॉमी। मेंस के लिए इनमें से किसी पे रिलाई मत करो। मेंस के लिए लेवल अप के क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जीएस 3 के नोट्स आते हैं मेंस के, वो वाली चीज आप करिए, वो ज्यादा रिलेवेंट रहेगा। ओके, तो दीज आर द सोर्सेस फॉर व्हाट, दीज आर द सोर्सेस फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ऐसे इंटरनेशनल बॉडीज, इंटरनेशनल मैपिंग के लिए ना कोई स्टैंडर्ड सोर्स नहीं है। ये जनरली, जैसे इस साल मोस्ट प्रोबेबली मैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से पहले ये पूरी चीज इंटरनेशनल बॉडीज, इंटरनेशनल मैपिंग यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा। जैसे लास्ट ईयर मैंने साइंस टेक पूरा यूट्यूब पे पढ़ाया था, इस बार आई एम प्लानिंग टू गो फॉर इंटरनेशनल बॉडीज एंड इंटरनेशनल मैपिंग। प्रीलिम से पहले सारा यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, वहां से करिएगा, बिकॉज देयर इज नो स्टैंडर्ड सोर्स फॉर इट। बट ऑल दिस विल कॉन्स्टिट्यूट योर 100% ऑफ प्रीलिम्स प्रिपरेशन, और ये आपके सोर्सेस होने चाहिए। सीसैट में प्रीलिम्स, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रीलिम्स, at that time we also have to talk about CSAT. I'm sorry. We also have to talk about CSAT. अब देखो CSAT के लिए ना not everyone needs to prepare a lot. जो बच्चा CSAT में बहुत ही अच्छा है, वो बस कुछ कुछ टेस्ट करता रहे so that वो इवॉल्व हो रहे। बेटा अभी मेंस, प्रांजल, I'll come to mains, give me some time. सर फॉर पॉलिटी शुड वी ऑल्सो ऐड बेयर एक्ट? नहीं, बेयर एक्ट ना थोड़ा टेक्निकल सा हो जाता है, मुझे बहुत पसंद नहीं है। ओके, कम बैक। सीसैट के लिए देखो, सम स्टूडेंट्स कैन ओनली रिलाई ऑन टेस्ट्स बिकॉज देर ऑलरेडी वेरी गुड एट इट। आप आईआईटी से हो, आपने बहुत सारा मैथमेटिक्स करा हुआ है, एंड यू डू नॉट वांट सम क्लास और एनीथिंग। जस्ट टेस्ट्स करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, सो दैट इट डजंट गो like out of practice. That's it. Some other students may need to do some classes systematically. क्लासेस करो, उसके असाइनमेंट्स करो, सारे पीवाई। ये वाला बच्चा, पहला कैटेगरी वाला बच्चा टेस्ट करेगा और सारे पीवाईक्यूज करेगा। ये वाला बच्चा जो थोड़ा वीक है, जिसको क्लासेस की जरूरत है, वो क्लासेस करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, प्रैक्टिस असाइनमेंट्स करेंगे, एंड देन दिल ऑल्सो डू टेस्ट्स। कोई भी क्लासेस, जैसे हमारे यहाँ हिमांशी आहूजा मैम पढ़ाते हैं, शी इज एन एक्सीलेंट एक्सीलेंट टीचर फॉर सीसैट। हिमांशी मैम हमारे यहाँ पढ़ाती है, तो मैंने उनको देखा है और उनके फीडबैक बहुत ज्यादा सुने हैं कि वो चीजों को बहुत सिंप्लीफाई करके रखती है, बहुत फॉर्मूलाज रटवा के ये सब करके नहीं पढ़ा रही होती है। तो बट नॉट एवरी वन वुड नीड टू डू सीसैट, एंड इफ यू आर वेरी बैड एट इट, जैसे कुछ बच्चे हैं जो सीसैट में 20, 30, 40 स्कोर कर रहे हैं, बेटा अभी से शुरू कर दो। हमने जून में भी एक बैच लॉन्च किया है सीसैट का, अभी से लेके शुरू कर दो, डू नॉट डिले इट। कुछ बच्चे हैं जो सीसैट में अच्छा करते हैं, 100, 120 वैसे आ जाते हैं, उनको क्लासेस नहीं करनी है, उनको हर वीक 30, 40, 50 क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस करना है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट मेंस। अब मेंस ना थोड़ा सा ट्रबलसम होता है। ट्रबलसम क्यों? क्योंकि ना यहाँ स्टैंडर्ड सोर्सेस, स्टैंडर्ड बुक्स नहीं होती है। स्टैंडर्ड बुक्स जो आपने प्रीलिम्स के टाइम पढ़ ली वो पढ़ ली, बट मेंस में ना, मेंस में जनरली आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि वो जो अच्छी किताबें होती है, टेक्स्ट बुक्स होती है, वो एग्जाम के लिए नहीं लिखी गई है, तो एग्जाम रिलेवेंट नहीं पढ़ाती है। वो आपको बहुत सारा ज्ञान दे सकती है, बट एग्जाम को कैसे टैकल करना है वो नहीं बता पाते हैं। इसीलिए मेंस के लिए आपको, जहां पे सिलेबस बहुत वेल डिफाइंड है, सिलेबस वाइज आपके पास नोट्स होने चाहिए।
तो आप अगर खुद से लाइक गो थ्रू एवरी बुलेट पॉइंट ऑफ द सिलेबस, GS1 टू GS4 सबके आपके पास नोट्स होने चाहिए। इन नोट्स से आप पीवाईक्यूज कर पाओ और इसमें करंट अफेयर्स अपडेट करो और साथ में टेस्ट देते रहो। ये वाली चीज हमें करना है। तो अब नॉट एवरीवन हैज नोट्स सर, अगर नोट्स नहीं है तो किन नोट्स पे डिपेंड करना है, मैं इसके बारे में बात कर लेता हूं ब्रॉडली। देखो, इफ यू आर डन विथ हिस्ट्री फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन के लिए आप क्या करेंगे, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की हिस्ट्री का नॉलेज यूज करके मेंस के सारे पीवाईक्यूज लिखेंगे। उससे ना यू विल गेट एन आइडिया कि व्हाट आर द क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड, एंड फ्रॉम द सेम सोर्स जिससे आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है, आप मेंस के लिए पढ़ेंगे। जैसे आई नो कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जब निखिल सर एंशिएंट मिडिवल कल्चर पढ़ाते हैं, he teaches for around 60 hours, but 60 to 70 hours, but the same thing, ancient medieval culture जब निखिल सर मेंस के लिए पढ़ाने आएंगे तो he'll take 4 to 5 classes covering major theme। उनके नोट्स उनकी क्लासेस कर लो अगर आपके पास खुद का सोर्स वेल डिफाइंड नहीं है। ज्योग्राफी, देखो ज्योग्राफी में क्या होता है, ज्योग्राफी में क्वेश्चंस या तो एनसीईआरटी से आते हैं बहुत सिंपल से, या क्वेश्चंस करंट अफेयर्स वाले होते हैं। तो आपने जो प्रीलिम्स के लिए सोर्सेस पढ़े ना, उन्हीं सोर्सेस को रेफर करना है, बट बहुत सिलेक्टिवली। कैसे? लुक एट द पीवाईक्यूज, ट्राई टू आंसर दोस पीवाईक्यूज। इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर, गो टू दैट सेक्शन ऑफ द एनसीईआरटी। इफ यू आर नॉट एबल टू डू, गो टू एआई टूल्स, दे विल हेल्प यू आउट। है ना? आप अगर एमएमपी प्रोग्राम का पार्ट हो तो एमएमपी में हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको ज्योग्राफी की भी नोट्स प्रोवाइड करेंगे। हम ये GS1 कर रहे थे, GS2 आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है GS2 के लिए, राइट? लक्ष्मीकांत के बेसिक से भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, लक्ष्मीकांत के बेसिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, बट यहां पे गो सिलेबस वाइज, हर टॉपिक के 1 पेजर नोट्स क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रखो। और वो आप खुद से नहीं बना पा रहे हो तो डिपेंड ऑन सम कोचिंग। जैसे अभी मैंने बाबू सर के नोट्स देखे हैं, बाबू सर के नोट्स ना पिछले साल तक क्या होते थे, वो बहुत ही शॉर्ट होते थे, उसमें बहुत कंटेंट हमें ऐड करना पड़ता था। बट दिस टाइम व्हाट बाबू सर हैज डन इज ही इज एडिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट। तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में एग्जाम सेंट्रिक बाबू सर आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रीलिम्स सॉरी पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। ऐसे ही सोशल जस्टिस का साहिल सैनी सर प्रोवाइड कर रहे हैं। या फिर तो आप कोई भी दूसरा जो भी आपको रिलायबल टीचर लगता हो, क्योंकि आई एम एट लेवल अप आईएएस, आई कंसीडर दैट लेवल अप आईएएस इज द बेस्ट इंस्टीट्यूशन आउट देयर फॉर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, एंड देयरफॉर हम अपने नोट्स को सबसे अच्छा बना के रखने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ नोट्स टीचर ही बना रहे होते हैं, इसलिए मैं टीचर्स का नाम भी ले रहा हूँ कि बाबू सर के जो पॉलिटी और गवर्नेंस के नोट्स हैं जो अभी हम एमएमपी में दे रहे हैं, there are much updated version of much better version of the notes that he used to provide earlier which were very short। अभी वो उसमें ज्यादा कंटेंट है और it would be easier to cover those notes before exam rather than depending on bulky books। ऐसे ही आईआर के लिए ना मैंने ना अभी रिसेंटली आईआर पढ़ाना शुरू किया था एमएमपी में, एंड आई एनालाइज्ड एंड शोड कि आईआर पे क्वेश्चन मोस्टली करंट अफेयर्स से आते हैं। आउट ऑफ 57 क्वेश्चंस इन आईआर दैट हैज बीन आस्क्ड बिटवीन 2013 to 2025, only 2 questions were based on static, otherwise they were on current affairs, and that is why मैं अभी कुछ दिनों में इन नेक्स्ट 10 days आई विल रिलीज अ कंपाइलेशन ऑफ आईआर नोट्स। हमारा टेलीग्राम चैनल है करंट अफेयर्स वाला, मैं उस पे ये कंपाइलेशन रिलीज करूंगा। आप ना सबसे पहले वो पढ़ लेना कंपाइलेशन, और अगले 1 साल तक उसमें करंट अफेयर्स ऐड करते रहना, योर आईआर वुड बी कंप्लीटेड। सिमिलरली तो दिस इज योर प्रिपरेशन फॉर आईआर और इंटरनेशनल रिलेशंस। यहाँ पे कोई आईआर के लिए कोई किताब खरीदने मत जाना, दैट विल बी अ स्टूपिड थिंग टू डू। इफ यू वांट टू रीड बुक्स, रीड बुक्स पब्लिश्ड बाय गुड ऑथर्स which are not specifically written for civil services examination। है ना? शशि थरूर की बुक्स है, श्याम शरण की बुक्स है, एस जयशंकर की बुक्स है, जस्ट रीड देम फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपिंग इंटरेस्ट। एग्जाम के लिए अभी विद इन नेक्स्ट 10 days आई विल बी रिलीजिंग सेट ऑफ नोट्स फॉर आईआर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, एग्जाम सेंट्रिक मैनर में। वो आपके लिए बहुत रेलेवेंट नहीं होगा क्योंकि यू आर राइटिंग एग्जाम इन 2027, बट दैट विल डेवलप योर बेस, एंड ओवर द नेक्स्ट 1 year based on this learning you can keep doing value addition from the newspapers there। GS3 में अगेन, GS3 में रादर देन रनिंग बिहाइंड बहुत सारी चीजें,
कोई भी लाइक यू रिव्यू यू डू योर ओन रिसर्च एंड फाइंड एन इंस्टीट्यूशन। हम यहाँ पे लेवल अप में GS3 के सॉरी हम लेवल अप में GS3 के हर एक बुलेट पॉइंट्स का, देयर आर अराउंड 20 बुलेट पॉइंट्स ऑफ द सिलेबस, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नोट्स प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। हम पढ़ाते भी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मेंस के लिए और नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। आपको वो करना है और उसके बाद वैल्यू एडिशन करते रहना है। आप रिसर्च कर सकते हो आप कौन सा इंस्टीट्यूशन चूज करना चाहते हो, बट GS3 में खुद पढ़ाता हूं। आई मेक ईच एंड एवरी ऑफ दोज नोट्स माई सेल्फ इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, एंड दैट इज वेरी वेरी रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। और उस वो आप कर लोगे तो आपको उसके बियॉन्ड कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, लेट्स गो टू GS4। GS4 के लिए अच्छा सोर्स क्या है? देखो, GS4 के लिए ना पहले आपको थोड़ी बेसिक पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत सारे टर्म समझने पड़ते हैं, एथिक्स क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, ये सारी चीजें करनी होती हैं। तो ना देयर आर मेनी गुड टीचर्स। अर्णव पूछ रहे हैं कि सर LMP में रिकॉर्डेड, हाँ बेटा देखो अर्णव समझो इस बात को कि अभी हम आपको फर्स्ट वीक में इकोनॉमी कराएंगे, तो इकोनॉमी प्रीलिम्स के लिए भी कराएंगे, इकोनॉमी मेंस के लिए भी कराएंगे, है ना? तो ऑलरेडी जो हम अभी प्रीलिम्स में पढ़ा चुके हैं, हम आपको अगर देखो LMP प्लीज समझो, मैं इसको ना थोड़ा सा समझाता हूँ। LMP is not a course where we emphasize on teaching and notes. LMP is a course where we focus on mentoring you. We give you assignment every day and we ask you तुम complete करो इसे। अगर तुम बोल रहे हो कि नहीं सर मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, तो we will give you notes. We do not want to duplicate your notes. कि आपके पास ऑलरेडी कुछ है हम जबरदस्ती अपने नोट्स इंपोज करें, नहीं, we don't want to do that. If you say कि नहीं सर notes are not good enough, I want classes, we'll give you classes. ये क्लासेस कौन सी होंगी? लेटेस्ट क्लासेस जो हमने अभी ली है। मान लो आपको IR आ रहा है, तो IR जो मैंने लेटेस्ट IR पढ़ाया होगा वो क्लासेस दी जाएंगी। आप बोलोगे सर क्या मेरे पास जो नया MMP आएगा उसका एक्सेस नहीं रहेगा? वो रहेगा, बट उससे पहले हम आपका MMP कंप्लीट करा चुके होंगे थ्रू दीज क्लासेस। ओके, तो रिकॉर्डेड रहेगा ये यहाँ पे, बिकॉज लास्ट ईयर तो देखो, लास्ट ईयर LMP में ना एक प्रॉब्लम हुआ था। प्रॉब्लम क्या हुआ था? बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर हम 5 महीने में पूरा मेंस कवर करने की कोशिश कर रहे थे, एंड इट बिकेम वेरी हेक्टिक फॉर स्टूडेंट्स। तो रादर देन डूइंग दिस टाइम वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रिपरेशन फ्रॉम जून टू दिसंबर। इसमें हमें पूरा मेंस कंप्लीट करना है, थोड़ा प्रीलिम्स का भी करते रहेंगे पर प्राइमरली मेंस करना है। ओके सर, कैन वी ब्लाइंडली फॉलो यू? नो, डू नॉट ब्लाइंडली फॉलो एनीवन, कीप मी ऑन माय टोज। हमेशा मैं बोलूं कि देखो इससे सारे PYQs हो सकते हैं, जाओ और देखो सारे PYQs कर पा रहे हो कि नहीं। मैं बोलूं कि मैंने सिलेबस के चारों बुलेट पॉइंट्स कवर कर दिए एग्रीकल्चर के, आप देखो, इवैल्यूएट करो, वेरीफाई करो। ये ना अब किसी टीचर को बहुत एकदम हाई पेडेस्टल पे नहीं रखना। रेस्पेक्ट देम, वैल्यू देम, बट ऑलवेज बी रेडी टू पुट इन सम मोर एफर्ट्स। बेटा करंट अफेयर्स ना देखो, बहुत पुराने करंट अफेयर्स नहीं करने होते, न्यूज़पेपर आज से करना शुरू करो और नोट्स उसके बनाना शुरू करो जो कि जिसके बेसिक्स आपने कर लिए, अदरवाइज नोट्स भी बनाना शुरू नहीं करना है। 68.3 मार्क्स SC में बन रहे हैं। अरे यार 68.3 में 100% सिलेक्शन हो जाएगा बेटा SC में, आराम से पढ़ो। MMP फॉर 2027 बेटा एट द एंड ऑफ अगस्त। निखिल सर का हिस्ट्री का मॉड्यूल है बेटा, आप पोर्टल पे जाके ले सकते हो। यस संजय, you can completely follow level up IAS foundation course. We will make sure that जो भी preparation की जरूरत है हम सब वहां पे कराएंगे। तृप्ति, if you are not good at maths and if you think कि this can be a trouble, ऑलरेडी हमने एक CSAT का कोर्स लॉन्च कर दिया है जून में ही, जो हर वीक में 3 क्लासेस है, एंड दैट इज समथिंग दैट कैन बी यूजफुल। आप अभी से प्रैक्टिस करना उस पर शुरू करिए। सर दिस ईयर प्री वाज वेरी डिफरेंट, डू वी नीड टू मेक रेडिकल चेंजेस इन सोर्सेस एंड स्ट्रेटजी? नहीं, देखो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दिस टाइम वाज डिफरेंट। बच्चों को ना बहुत स्ट्रैटेजी में चेंजेस नहीं करने, पढ़ने वही बेसिक्स ही पढ़ेंगे।
स्ट्रैटेजी में चेंजेस ना हमें करना है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को करना है। हमें हमारे पेपर्स वैसे मॉडिफाई करने पड़ेंगे, हमें वो नए पैटर्न लाने पड़ेंगे, हमें कुछ नए पैटर्न जो यूपीएससी ने नहीं भी पूछे वो भी लाने पड़ेंगे, ताकि बच्चा इज यूज्ड टू अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट पैटर्न, है ना? तो आप अपनी प्रिपरेशन में हमेशा बेसिक्स पे ही फोकस करोगे, कोर एरियाज पे ही फोकस करोगे। संगीत ऑलरेडी पोर्टल पे अवेलेबल होगा बेटा, जीएस3 का मॉड्यूल। I'll talk about how to plan a day in general. Is your science tech free classes enough for prelims? Yes बेटा, it is enough for prelims, बस करंट अफेयर्स ऐड करते जाना। Okay, okay. Now, let's go back and let us discuss some other things very quickly. बिफोर ये मैं सेशन बहुत लंबा नहीं करना चाहता, ऑलरेडी 6 बज गए हैं। तो देखो, अ, अब हम जो भी पढ़ रहे हैं ना दिन भर में, उसको ना उसका रिवीजन का एक स्ट्रैटेजी रखो। डू नॉट विदाउट अ रिवीजन स्ट्रैटेजी यू विल नॉट गेट सिलेक्टेड। आप नई नई चीजें पढ़ते जाओगे, पुरानी चीजें रिवाइज नहीं करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू गेट थ्रू। रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्टडिंग न्यू थिंग्स आफ्टर अ पॉइंट। तो रिवीजन का ना ये प्लान रखना है, रिवीजन का हमें रफली ये प्लान रखना है कि every day whatever you study, revise that. At the end of the day, give 45 minutes for revising the whole day's work. आपने आधा दिन ऑप्शनल को दिया होगा, आधा दिन जीएस को दिया होगा, लास्ट 45 minutes should be for again revising the whole thing. At the end of the week, plan to write some test so that पूरे वीक में जो पढ़ा है वो आप रिवाइज कर पाओ। टेस्ट नहीं भी लिख रहे हो तो पूरे वीक में जो पढ़ा है उसको रिवाइज करने पे दो। ऐसे ही एट द एंड ऑफ मंथ, एट द एंड ऑफ 3 month, यू शुड गिव टाइम फॉर व्हाट, रेगुलर रिवीजन। अदरवाइज ना 3 महीने बाद अगर आपने ऐसे डेली, वीकली, मंथली, 3 monthly रिवीजन नहीं किया होगा ना, यू वुड ऑलरेडी फॉरगेट व्हाट यू हैव डन इन जून। एंड दैट इज वाई रिवीजन को सिस्टमैटिक रखो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर प्रिपरेशन। इफ यू डोंट डू इट, यू विल पुट 2 times एफर्ट, 3 times एफर्ट एंड विल नॉट बी एबल टू रिकॉल एनीथिंग। देन कुछ और चीजें हैं, जैसे आप ना प्रिपरेशन में आते हो, बहुत मोटिवेटेड होते हो, रात रात भर पढ़ रहे होते हो, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, एंड योर प्रिपरेशन गेट्स हैम्पर्ड। तो कुछ बेसिक चीजें, जैसे please make sure that you're walking for 30 to 45 minutes every day, you're sleeping for 7 to 8 hours, you're having healthy food, and you're taking breaks. मतलब इस प्रिपरेशन, बिकॉज दिस इज अ मैराथन, दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस, you'll have to take breaks. जनरली मैं क्या बोलता हूँ बच्चों को, संडे को शाम को 5 बजे से रात में 12 बजे तक डू नॉट डू एनीथिंग। डू नॉट डू एनीथिंग इन द सेंस, पढ़ाई का कुछ मत करो। जस्ट bring yourself away from this preparation. This will rejuvenate you for the next day, for the next week. This is very very important. And in the end, प्लीज समझो कि ना, ये हम हाई मोटिवेशन के साथ बैठ तो जाते हैं, बट मोटिवेशन हमेशा हाई नहीं रहेगा। इट इज डिसिप्लिन दैट विल काउंट। एंड एक डिसिप्लिन शेड्यूल बना के उस पे काम करना शुरू करो। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, 2027 में सेलेक्ट होना है, दीज आर द थिंग्स दैट यू विल नीड टू फोकस अपॉन। तो प्लान, उसके बाद पढ़ने बैठो। रिवीजन बीट्स नोवेल्टी। आप नई नई चीजें पढ़ रहे हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पुरानी चीजों को रिवाइज करते रहना। तो जो 5 स्टेप रिवीजन बताया है उसको सिस्टमैटिकली फॉलो करो। देन हेल्थ पे पूरा ध्यान दो। आप 16 घंटे पढ़ने के चक्कर में सो नहीं रहे हो, खा नहीं रहे हो, दैट्स गोइंग टू हैम्पर योर प्रिपरेशन। एंड प्लीज ऑलवेज रिमेंबर, डिसिप्लिन इज मोर इंपॉर्टेंट। आप ने शेड्यूल बनाया है कि इन अ डे यू विल स्टडी फॉर 6 hours, प्लीज मेक श्योर दैट दो 6 hours आर नॉट बीइंग गिवन टू एनीथिंग एल्स। ये आखिरी में लास्ट फ्यू पॉइंट्स हैं। आई नो देयर आर सम अदर थिंग्स, जैसे सम स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड कि करंट अफेयर्स का स्ट्रेटजी या वर्किंग प्रोफेशनल्स का स्ट्रेटजी। I'll keep coming up with these strategies in the coming days. It's because it's already 1 hour. I do not want to extend this session beyond 1 hour. तो मैं आपको करंट अफेयर्स का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए उस पे एक सेशन जल्दी से लेता हूं। एलएमपी या मेंटरशिप में जो डाउट्स है उस पे एक सेशन जल्दी से लेता हूं। विद इन नेक्स्ट 1 or 2 weeks I'll take that. And then what should be the daily schedule and how should we be planning that, उसके लिए भी I will take a session. If someone from my team is looking into it, please note down these topics and I'll uh, every week I'll keep taking one such session so that आपके जो भी जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी कंसर्न्स हैं, हम उसे रिड्यूस करते जाएं, हम उसे कम करते जाएं। ओके, चलिए, I'll stop here for now.
Thank you very much. I hope to see you again in the coming session, in future sessions. Thank you.